Assalamu alaikum, dear student. This is Ataf Sayyed. I am here with another lecture on market and market structure. So let's discuss today's lecture. So before understanding what is market structure, we must know that what is market. The term market is derived from the Latin word marketus, which means merchandise or trade. So this is a picture where you can see that people are interacting with each other. So this is a simply picture of a market. So there are the different authors who have worked on the marketing or market. So here are a few definitions by different authors. One of the definition of a father of a marketing, Philip Kotler, he said that market is an area or atmosphere of a potential exchange. And in the words of Professor Mitchell, uh, Mitchell said that market is not a geographical meeting place, but is any getting together of buyers and sellers in person, by mail, telephone, telegraph, and internet, or any other means of communication. So here, Professor Mitchell completely defined that market is not just a physical place, but it is basically the arrangement are getting together of buyers and sellers. It may be by mail, telephone, telegraph, or through internet or any other means of communication. So here the market is not just a limited; it may be the physical or a virtual. और हम virtual की अगर ये बात करें तो virtual market में हमारी Amazon और आपकी Alibaba बहुत सारी ऐसी sites हैं जो इसमें आती हैं. And in a common language, market means a place where goods are purchased. However, in economics, a market is a place where buyers and sellers can meet to facilitate the exchange or transaction of goods and services. Like in our common language, we just say that means it's a place where people interact with each other. So this is not just a definition of a market in the eyes or in the sphere of economics. Economics just said that it's arrangement. It's arrangement where buyers and sellers means exchange their values for goods and services. And what are the features of market? There are basic four features of market. मीन्स अगर वो virtual market हो उसमें भी ये features होंगे, या फिर आपकी physical market हो जिसको हम कहेंगे जियोग्राफिकल मार्केट हो उसमें भी आपके ये फीचर्स होंगे. तो सबसे पहले वन एरिया, एक एरिया होनी चाहिए जहाँ पे आपके जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हों, डायरेक्ट हों, आइदर थ्रू ब्रोकर्स और एजेंट्स और एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लेकिन उनमें क्या होना चाहिए, एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए, एक ऐसी प्लेस होनी चाहिए आइदर फिजिकल आ रहा virtual जहाँ पे वो आपस में इंटरेक्ट करें. एंड सेकंड, द की प्लेयर्स बायर्स एंड सेलर्स. तो किसी भी मार्केट के लिए चाहे वो फिजिकल प्रेजेंस उनकी ज़रूरी हो या ना हो या virtual में आए वो, लेकिन ये दो प्लेयर होने चाहिए. अदरवाइज मार्केट आपकी कोई भी ऐसी स्पेस जिसमें एरिया तो है लेकिन ये चीज़ नहीं है तो वो मार्केट नहीं होगी. अच्छा, अगर ये दोनों हैं, अगर कोई चीज़ नहीं है तो मार्केट का तो एग्जिस्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता. तो तीसरी चीज़ कि एक कमोडिटी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ की आपकी कहेंगे मार्केट हो, कोई स्पेशल मार्केट हो या जनरल मार्केट हो, तो उसमें कमोडिटी कम से कम एक कमोडिटी की ज़रूरत होती है. और फोर्थ जो आपकी इसमें चीज़ है वो है प्राइस. जाहिर सी बात है जब आप आपकी कमोडिटी भी है लेकिन प्राइस नहीं है तो आप इंटरेक्ट किस पे करोगे, निगोशिएट किस पे करोगे. तो बेसिकली ये चार चीज़ें हैं जो हैं ये चारों चीज़ें फीचर्स हैं आपके मार्केट की, किसी भी मार्केट की, चाहे वो जियोग्राफिकल हो, फिजिकल हो या फिर वर्चुअल हो. तो अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ मार्केट. मीन्स क्या वो चीज़ें हैं जो इम्पेक्ट करती हैं किसी भी मार्केट की, किसी भी किस्म के मार्केट की साइज साइज को. तो इसकी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन हमने उनको दो जो है सो हेड्स में डिवाइड किया है. एक ये नेचर ऑफ द कमोडिटी एंड अदर द जनरल कंडीशन. सो आए इनको discuss करते हैं. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ कमोडिटी. The very first factor is a wide demand.
A commodity which is an universal demand will have a wide market. The best example is a fuel or a petrol. इसमें ये है कि आपकी ऐसी कमोडिटी जिसकी जो डिमांड हो वो वाइड हो, मीन्स वाइड मीन्स ग्लोबल लेवल पे हो या कंट्री लेवल पे हो, मीन्स ज़्यादा, जितनी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी उस कमोडिटी की मार्केट ज़्यादा होगी। जैसे पेट्रोल की जब मैंने एग्जांपल कोट किया तो पेट्रोल एक ऐसी कमोडिटी है जो हर कंट्री किसी ना किसी लेवल तक वो यूज कर रहा है। तो मीन्स मोस्टली जो आपके सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स हैं उनमें आपका अमेरिका है, आपका चाइना है, इंडिया है, फिर पाकिस्तान, जितने भी ये कंट्री हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हर एक कंट्री में डिमांड है। तो जिस भी कमोडिटी की जितनी डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी मार्केट उतनी ज्यादा बड़ी होगी। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोट किया है रीजनल फिल्म्स का। अब रीजनल फिल्म्स लिमिटेड होती है उसी रीजन में, क्योंकि फॉर सपोज अगर हम सिंधी की बात करें तो हमारी जो मूवी सिंधी में बनती है वो हम सिंध के बाहर नहीं देखते, हम सिंध में ही देखेंगे मोस्टली, या फिर हमारे मीन्स वो कम लोग हैं जो सिंधी समझते हैं या बाहर रहते हैं जो सिंधी हैं वो देखेंगे, मीन्स इसका जो मार्केट है वो कम होगा। लेकिन इसके बरक्स हम इंग्लिश मूवीज की बात करें, इंग्लिश मूवीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो आपकी इंग्लिश मूवीज देखी जाती हैं। क्यों कि ये जो आप उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सारे कंट्रीज में वो कॉमन है, वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज में बनती है तो उसकी एक मार्केट बड़ी होती है। तो सेम इसमें दूसरी चीज ये है, दूसरा फैक्टर ड्यूरेबिलिटी। अगर किसी भी कमोडिटी की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर वो ड्यूरेबल होगा लाइक गोल्ड, सिल्वर, या आप अभी जो ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर वो चीज़ जो लॉन्ग लास्टिंग चल सके, ड्यूरेबिलिटी मतलब जो ज़्यादा देर तक चल सके, तो वो आपकी क्या होगी, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि आप उसको बहुत दूर तक लेके जा सकते हो, आप उसको बहुत मीन्स उसको टाइम तक रख सकते हो, तो एक्सपोर्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दूसरी इसमें अगर हम बात करें, अगर फॉर सपोज नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, जैसे पेरिशेबल गुड्स कहते हैं, आपके फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, अब इनमें क्या है, ये आपकी जल्दी खराब हो जाएंगे, ये आपकी जल्दी खराब हो सकते हैं, तो सिंपली आपके हम इनको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते और ज़्यादा देर तक हम मीन्स इनको बहुत दूर तक इनको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की डिफरेंट इन्वेंशन से जैसे आप हम उनको स्टोर कर सकते हैं या फिर एयरलिफ्ट कर सकते हैं हम दूसरी जगहों पे, लेकिन फिर भी इसकी तो कुछ जो पहले ज़माने में थे उससे कुछ इनकी जो है शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अ, लेकिन इतनी नहीं है जितनी आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं, इतनी की ड्यूरेबिलिटी नहीं है। तो ये भी एक बड़ा एक फैक्टर है जो आपकी कमोडिटी की मार्केट पे इम्पेक्ट करता है। तीसरी चीज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स हैंडी है कि नहीं, आपके जो प्रोडक्ट हैं क्या हम उनको इजीली हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक आपकी उसकी मार्केट बढ़ेगी। फॉर सपोज आपकी मशीनरीज वगैरह जो आप यूज करते हो आप बाहर से मंगवाते हो सिंपली, क्योंकि वो आपके सारे पोर्टेबल हैं तो हम उनको यहाँ पे मंगवाते हैं। लेकिन आपकी जो ब्रिक्स हैं, स्टोन्स हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये क्या है, हम इनको लोकल मार्केट से लेते हैं, इनकी एक लिमिटेड मार्केट होती है, क्योंकि हम इनको ज़्यादा दूर तक यहाँ बहुत दूर से हम इनको मंगवा नहीं सकते, तो इनकी एक मार्केट जो है वो लिमिटेड है क्योंकि इतने ज़्यादा पोर्टेबल नहीं है। इसमें आगे जो फैक्टर है वो आपकी ग्रेडिंग और सैम्पलिंग। ऐसे गुड्स जो ग्रेडिंग और सैम्पलिंग पे चलते हैं, जिनकी ट्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग का मतलब है कि हम जो गुड्स हैं उनको क्वालिटी के बेस पे ग्रेड देते हैं, मीन्स ये अच्छे ए क्लास के, बी क्लास, सी क्लास, लाइक वाइज। और सैम्पलिंग मतलब हम ऐसी एक सैंपल मीन्स ओवरऑल जितनी भी आपकी कमोडिटी है, जो कोई भी गुड है, स्पेशली आपकी ग्रेन्स जो होते हैं, हम उनका छोटा एक सैंपल रखते हैं फॉर द ट्रांजेक्शन, और जो बायर्स होते हैं वो जस्ट उसी क्वांटिटी में वो समझ के उसकी क्वालिटी को समझ लेते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी कमोडिटीज जिनको हम डिवाइड कर सकें ग्रेडिंग में, जहाँ हम उनका सैंपल ले सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में हम सैंपल नहीं ले सकते। फॉर सपोज हम मोबाइल की सैंपल नहीं रख सकते, हम डिज़ाइन दिखा सकते हैं लेकिन हम हर प्रोडक्ट की हम सैंपल नहीं रख सकते, या कोई ऐसी चीज़ें। लेकिन हम जो आपके ग्रेन्स हैं,
हम उनका एक सैंपल रख सकते हैं और वो चीज़ें जो है सो रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो ऐसी जो भी कमोडिटीज जिनको हम सैंपलिंग सैंपलिंग कर सकें जिनकी, या जिनको हम ग्रेडिंग में डिवाइड कर सकें, तो हम उनको उनकी जो है मार्केट ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी चीज़ कैरी बहुत देर दूर तक कर सकते हैं फॉर द ट्रांजेक्शन। तो इसमें ये भी एक फैक्टर है। और आगे जो फैक्टर है हमारा एडिक्वेट सप्लाई। सपोज अगर ऐसी आपकी कमोडिटी है जिसकी आपकी सप्लाई मार्केट में आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसकी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको प्रोड्यूस आसानी से कर सकते हो। तो मतलब अगर आप मार्केट में आप उसकी सप्लाई ज़्यादा देर तक कर सकते हो, उसकी सप्लाई आप ज़्यादा दे सकते हो, तो उसकी मार्केट जो है बढ़ सकती है। लेकिन ऑन अदर हैंड आपकी जो रेयर पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, जिनको आप सप्लाई नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी, उनकी जो मार्केट होगी वो लिमिटेड होगी। सो ये थे फैक्टर्स जो उस पर इम्पेक्ट करते थे आपकी मार्केट की साइज पे। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। डिफरेंट क्लासिफिकेशन है जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके लोकेशन के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे, कंपटीशन कंपटीशन में तो जनरली हम यहाँ पे परफेक्ट इम्परफेक्ट की बात करेंगे। लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो हम उसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन की और परफेक्ट कंपटीशन की हम डिटेल से बात करेंगे। और दूसरी टाइम के बेस पे, आपकी ट्रांजेक्शन की बेस पे और रेगुलेशन की बेस पे आए इनको अलग अलग से। सबसे पहले हम बात करें जियोग्राफिक लोकेशन के, तो हम उसमें कहेंगे लोकल मार्केट, जो हमारे लोकल्स हैं, जो चीज़ें हम अपने शहर में, गांव में, ये हमारे लोकल मार्केट्स हैं। और इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे कोट किया है, क्ले यूटेंसिल्स, आपके जो मिट्टी के बर्तन हैं, हमारे वो लोकल मार्केट में ही बनते हैं, हम उनको वहीं पे ही बेचते हैं। और दूसरी आपकी रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट कोई आपकी स्टेट है, फॉर सपोज आपका रीजन है, उसमें वो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वो सारी आपकी मार्केट। इसका बेस्ट एग्जांपल इसकी कम्युनिटी का है आपकी जो रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे हमारी हैं कावश है, हमारी इसमें कोशिश है, इबरत है, दीगर जो भी हमारी सिंधी में न्यूज़पेपर्स हैं, तो ये इनका एक फॉर सपोज रीजनल मार्केट में ही आती है। इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम डान अखबार की उठाएं, डान न्यूज़पेपर जो है, डान न्यूज़पेपर तो वैसे जर्नल है, इसके दो पोर्शन होते हैं, एक तो आपका मेन पेज होता है, दूसरा आपका इसमें मेट्रो होता है। मेट्रो की जब हम बात करें, मेट्रो हर एक प्रोविंस का डिफरेंट होता है, क्योंकि मेट्रो लिया गया मेट्रोपोलियन से, जो उसका मेन सिटीज होते हैं। अगर हम डान जो हमारी सिंध में होती है, उसमें हमारे जो बड़े शहर हैं जैसे लाइक कराची, आपका हैदराबाद, सखर, जो भी आपके लाड़काना, उसकी न्यूज़ जो होगी वो मोस्टली आपके उस मेट्रो वाले पेज में होती है। अगर हम पंजाब में देखेंगे, पंजाब में उसमें लाहौर की होगी, पिंडी की होगी। इस्लामाबाद का होगा तो उसमें प्योर जो आपका कैपिटल टेरिटरी उसकी होगी। बलूचिस्तान में कोयटा की होगी। तो ये आपके एक एग्जांपल है रीजनल का। हम कोयटा वाली मेट्रो यहाँ पे नहीं होती हमारे यहाँ, लेकिन वो आप सारी मेट्रो अगर आप देखना चाहें तो इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल सकती है, लेकिन हम फिजिकली हम बात करें तो वो उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तीसरा टाइप जो है इसका नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट ऐसी मार्केट जो आपकी पूरी कंट्री तक जाए। जैसे आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जैसे पाकिस्तान की बात करें तो हमारा कल्चरल ड्रेस है, हमारी सलवार कमीज है, तो आपको ऑल ओवर द कंट्री में वो चीज़ें मिलेंगी। उर्दू नावल्स कहें, ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल जो है सो पूरे पाकिस्तान में मिलेंगी। और फोर्थ टाइप है इसका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट वो चीज़ें जो आपकी बियॉन्ड द कंट्री है, इंटरनेशनली लेवल पे जो आप ट्रेड करें, और ये बल्क क्वांटिटीज में होती है। अगर ये आप दो ममालिक के बीच में हो, या आपकी मीन्स बहुत सारी वर्ल्ड लेवल पे हो, जिसको हम कहेंगे ग्लोबल, तो वो सारी चीजें आपकी जियोग्राफी पे आ गई। इनका देखें स्पेन बढ़ता जाता है, लोकल का कम होता है, रीजनल का उससे बड़ा, नेशनल का उससे बड़ा, इंटरनेशनल का उससे बड़ा, ग्लोबल मीन्स कंप्लीट आपकी जो ओवरऑल वर्ल्ड। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी की जब हम बात करें तो होलसेल आपकी जो मार्केट है उसमें बल्क क्वांटिटी में जो होती है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल होती हैं। और ये जो आपके होलसेलर्स होते हैं, ये इंटरमीडिएटरी होते हैं आपके प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। और दूसरा आपका इसमें क्वांटिटी में जो आता है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में क्या होता है, उसमें जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि इससे जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट इससे खरीदते हैं। जो हम अपने लोकल शॉप से जो हम खरीदते हैं वो सारे आपके रिटेल मार्केट में आते हैं। और ये आपके होलसेल
मार्केट होलसेलर और आपके बीच में, मीन्स कंज्यूमर के बीच में या कस्टमर के बीच में, ये एज इंटरमीडिएट काम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इसमें आपका एक शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड जनरली वो चीजें जो आपकी पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो जल्दी से खराब हो जाते हैं, जैसे कि आपके लाइक वेजिटेबल्स, फ्लावर, फिश, एग्स, फ्रूट, मिल्क एक्सेट्रा, ये सारे पेरिशेबल गुड्स हैं। इनकी जो है आपकी सप्लाई आप जो चेंज नहीं कर सकते इन शॉर्ट पीरियड, क्योंकि ये अगले दिन फिर हम इनको डेली मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस पे मिलती हैं। और दूसरा होता है आपका लॉन्ग पीरियड मार्केट। इसमें वो चीजें आती हैं जो आपके ड्यूरेबल होती हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और हम इनको इनकी सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं अगर मार्केट में चेंज होती है वगैरह तो। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें दो टाइप की चीजें होती हैं, स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट, स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट लाइक वाइज, कि हम इसमें जो ट्रांजेक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैश होती है, इसमें कैश पेमेंट होती है, इसमें क्रेडिट पेमेंट नहीं होती, मीन्स इसमें देयर इज नो सिस्टम ऑफ क्रेडिट। बट अगर हम फ्यूचर मार्केट की बात करें तो बाय द वर्ड फ्यूचर से ही हमें पता चलता है कि इसमें जो ट्रांजेक्शन होती है उसकी जो पेमेंट वगैरह है वो फ्यूचर में, इसीलिए हम उसको फ्यूचर मार्केट कहते हैं। तो इसमें ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेस होती है, कैश बेस नहीं होती। और फ्यूचर में वो किसी भी दिन, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, वो डिपेंड करता है उस ट्रांजेक्शन जो आपस में बायर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे ये है जो आपकी स्टेट का जो लॉज और रेगुलेशन बनते हैं उसके बिना पे जो मार्केट होती है। मोस्टली हमारी जो मार्केट है वो रेगुलेटेड मार्केट है। उसका बेस्ट एग्जांपल आपका स्टॉक एक्सचेंज है। और अनरेगुलेटेड मार्केट वो होती हैं जो जिनको हम फ्री मार्केट भी कहते हैं, जहाँ पे उसके गवर्नमेंट की जो है सो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है ट्रांजेक्शन पे। ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, लीगलिटी मार्केट में आपकी दो किस्म के, एक आपका लीगल होगा, दूसरा लीगल होगा, सिंपल। तो लीगल मार्केट वो आपका मार्केट है जिसमें वो चीजें हम उनकी ट्रांजेक्शन करते हैं जो स्टेट गुड्स और सर्विसेज की जो स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड हो, और हम इसको फेयर मार्केट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें एक सुपर मार्ट की एक पिक्चर है जहाँ पे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं। और दूसरी आपकी इलीगल मार्केट। इलीगल मार्केट ये वो मार्केट है जहाँ पे आपके जो गुड्स हैं वो आइधर स्टेट से रिकॉग्नाइज नहीं है, या उसमें आपने टैक्स वगैरह पे नहीं की, मीन्स जो स्मगल्ड गुड्स होते हैं, तो कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं पे की, तो उसमें वो सारे आपके इलीगल मार्केट में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन में आपका ये होता है कि आपका एक होता है मिक्स्ड और जनरल मार्केट, जिसमें आपके हर किस्म के गुड्स वगैरह मिल जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये मोस्टली आपके बड़े शहरों में मिल जाता है, जैसे कि आपका सुपरमार्ट वगैरह, और आपके जो बड़े स्टोर्स होते हैं उनमें आप देखेंगे अंडर वन रूफ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपके क्लॉथ्स वगैरह, आपके अप्लायंसेज, आपके फूड, आपकी ग्रोसरी वगैरह सारी चीज़ें आपको अंडर वन रूफ मिल जाती है, तो हम इसको बोलते हैं जनरल मार्केट। और दूसरा होता है आपका स्पेशलाइज्ड मार्केट। स्पेशलाइज्ड मार्केट मीन्स कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का मार्केट, लाइक मोबाइल मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फूड ग्रेड मार्केट, क्लॉथ मार्केट, कॉस्मेटिक मार्केट। तो ये वो टाइप्स हैं जो एक स्पेशलाइज्ड मार्केट के हैं। तो वहाँ पे आपके एक ही टाइप की कम्युनिटी वहाँ पे आपको मिलेगी। दूसरे होते हैं मार्केटिंग बाय सैंपल्स। अब ये भी एक ऐसी टाइप है जहाँ ये उन कमोडिटीज की होती है जो जिनकी सैंपल हम ले सकें, जैसे कि आपकी पेंट्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, रॉ कॉटन हो गया, ग्रेन्स हो गए। तो ये आपके मार्केटिंग बाय सैंपल आपके इसमें आते हैं। अब इनके अलावा जो क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, वो आपकी जनरली कंज्यूमर बेस्ड पे होती है कि आपके कंज्यूमर के हिसाब से, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग पिन एंड डिसाइसिव ड्राइविंग फोर्स इन द इकोनॉमी। तो इसमें एक होता है आपका कंज्यूमर मार्केट, दूसरा होता है बिजनेस, इसमें तीसरा होता है ग्लोबल, और फोर्थ होता है नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट मार्केट जो आपके होते हैं। तो आए इनको अलग अलग करें। कंज्यूमर मार्केट तो बहुत ही सिंपल है। जितने भी कंज्यूमर कोई भी चीज खरीदते हैं, शूज हो गए, आपके क्लॉथ, हाउस होल्ड आइटम्स, टेलीविजन, साउंड सिस्टम, जो चीज हम कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, वो सारी जो जहां से भी खरीदते हैं वो सारे आपके कंज्यूमर मार्केट है। और कंज्यूमर मार्केट में क्वांटिटी जो होती है वो कम में जो है सो बाय और सेल होती है। लेकिन जो दूसरा टाइप है आपका बिजनेस मार्केट, इसको हम बोलते हैं बी टू बी। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को आपको जो है सो प्रोडक्ट जो है सेल करती है। तो इसमें एक ये चीज है कि कंज्यूमर मार्केट से इसमें क्वांटिटी जो है ज्यादा होती है।
इसमें एक कंपनी क्या होती है, इधर गुड्स देती है या सर्विस देती है। सर्विसेज वगैरह जैसे कि बैंकिंग की सर्विस हो गई, अकाउंटिंग की सर्विस हो गई, या ट्रांसपोर्ट सर्विस, और कोई भी सर्विस आप उसको देते हैं दूसरी अपनी बिजनेस को, या फिर आप रॉ मटेरियल वगैरह, अप्लायंसेज, इक्विपमेंट्स आप उनको प्रोवाइड करते हो। तो ये है आपका बिजनेस मार्केट। और दूसरा है आपका ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट आपके क्या होते हैं, इसमें ओवरऑल जो आपके, इसमें बहुत जितने भी हमने कहा कि आपके इसमें कंज्यूमर भी आते हैं, यहाँ पे आपके इसमें बिजनेस भी आते हैं, लेकिन इसकी जो स्पेन होता है, इसका जो स्कोप होता है आपका, वो ग्लोबल लेवल पे होता है। और इसमें बहुत सारे आपकी चैलेंजेस होती हैं। और आपका जो लास्ट में आपका नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट, आपके वो सारी कंपनीज, आपकी वो सारी कंपनीज जो है जैसे कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। नॉन प्रॉफिट वो ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए होती हैं, लाइक मॉस्क, टेम्पल्स, चर्चेस, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपके लोकल लेवल पे, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे। तो कंपनीज क्या करती हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करती हैं। इसमें भी एक ये चीज होती है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है वो टेंडर के बेस पे मिलता है। टेंडर वगैरह फिलअप होता है, उसके बाद उसमें बिडिंग होती है। जो कम से कम बिड देता है उसको ही जो है सो, इसमें बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। जो कम बिड देता है इसमें वो डिसाइड करते हैं आपकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट है कि भाई आप हम जो हमें कम से कम रेट पे और सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करें। तो इसके अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज वगैरह में फर्नीचर वगैरह ये चीज़ें आप उनको, या आप जो है मॉस्क वगैरह में डेली बेसिस पे जो चीज़ें यूज होती हैं, या आपकी टेम्पल्स में, चर्चेज में। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट, लोकल, स्टेट, तो न्यूज़पेपर हो गई या फिर स्टेशनरी हो गई, जो चीज़ें हम जो है तो गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती हैं। तो ये जो भी हमने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट हमने मार्केट को ओवरऑल हर मींस डायमेंशन से कवर किया। अगर कोई भी मार्केट से रिलेटेड अब भी क्वेश्चन हो, उसके फीचर से किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को, जस्ट हम ब्रीफली हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इसको अलग अलग से आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर इज द इंटरकनेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट सच एज द नंबर एंड relative strength of buyers and sellers, degree of freedom in determining the price, level and forms of competition, extent of product differentiation, and ease of entry into and exit from the market। तो ये आपके मार्केट स्ट्रक्चर हैं। इसमें फॉर सपोज कि आपके नंबर्स ऑफ बायर्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ सेलर्स कितने हैं, उसमें आपकी क्या कितनी फ्रीडम है आपके जो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, उसमें क्या लेवल की कंपटीशन है, उसमें आपकी एंट्री मार्केट में आसान है कि नहीं है, जिसमें आप जो है सो मार्केट में जिसमें आपकी पोजीशन है तो उसमें एग्जिट आसान है कि नहीं है। तो ये इसमें जनरली 4 ब्रॉड टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली। तो हम इनको अलग अलग से इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में एक एक को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, जो भी आपके लेफ्ट में है और दूसरे राइट में, जितने आपके लेफ्ट में वो मोस्ट कॉम्पिटेटिव है, जो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली। तो आपके राइट की तरफ जाएंगे वो लेस कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव का मतलब कि आपके बहुत सारे वहां पे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप में मीन्स आप मार्केट को कंट्रोल नहीं करते। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी मार्केट कंट्रोल नहीं करता, मार्केट में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो आपके जो कंट्रोल करते हैं। और ये आपका परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कंज्यूमर को ज्यादा बेनिफिट होता है। और ऑन द अदर हैंड आपकी जो मोनोपोली है, मोनोपोली में जो आपका कंट्रोल होता है वो आपकी उस प्रोड्यूसर जो सेलर होता है उसको होता है, और वो लेस कॉम्पिटेटिव होता है। सो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगेन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और कोई सजेशन हो तो आप वो भी मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर द वाचिंग, और प्लीज